गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 सब्जेक्ट, उसका फर्स्ट जो चैप्टर है उसका टॉपिक है आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है। कि आर्मेचर वाइंडिंग जो सिंक्रोनिक्स मशीन के बारे में हमने रीड किया था उसके बाद क्या है उसका टॉपिक है कि आर्मेचर एक्शन क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या है। द वाइंडिंग थ्रू विच करंट इज पास प्रोड्यूस द मेन फ्लक्स इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। कि जो वाइंडिंग में करंट पास होता है तो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। वेयर इज वाइंडिंग विच वोल्टेज इंड्यूस्ड इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। जहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है वो क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मशीन आर यूजली क्लोज्ड सर्किट वाइंडिंग but AC armature winding are always non-salient pole type and are usually open circuit type gave the star connection, gave two star connections. Armature winding of DC machine is are usually closed circuit winding but AC armature winding is a non-salient pole type and usually open circuit type giving star connections. The general principle governing armatures winding in AC machine are as under. First is the span of each coil must be equal to pole pitch. Two sides of coil must be under adjacent pole. The span of each coil must be equal to pole pitch and two sides of coil must be under adjacent pole. The coil must be connected in such way that their induced EMF help of each other. The winding may be single layer or double layer. वाइंडिंग क्या होती है, सिंगल लेयर और डबल लेयर। द वाइंडिंग शुड बी सो डिजाइंड दैट इट मस्ट इंड्यूस्ड EMF ऑफ द साइनसोइडल ऑफ फॉर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, इसकी जो अलग अलग तरह की जो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट पॉइंट है सिंगल फेस वाइंडिंग एंड पॉलीफेस वाइंडिंग। when only one winding is placed on the armature and only one EMF obtained at the output winding is called single phase winding and on when ਜਦੋਂ कि only one winding is placed on the armature, यानी कि आर्मेचर पे वन टाइम पे एक वाइंडिंग है, EMF obtain output and is called single phase winding and there is one winding placed on armature induces more than one, so that is called polyphase. Polyphase means three phase winding provided to armature. Concentrated winding क्या होती है, if one slot per pole or slot equal to number of poles are employed, the winding so obtained is called concentrated winding. कि if one slot per pole or slot equal to number of pole are is employed, the winding so obtained is called concentrated winding. Such type of windings is give maximum induced EMF for a given number of conductor but waveform of induced EMF no exactly of sinusoidal form sinusoidal of form. डिस्ट्रीब्यूट वाइंडिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटर इफ़ द नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल आर मोर देन ऑफ वन वाइंडिंग आर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट वाइंडिंग। कि जहाँ पे स्लॉट ऑफ पर पोल इज मोर देन एक से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट वाइंडिंग। सच टाइप ऑफ वाइंडिंग गिव द स्लाइटली लेस देन ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF फॉर गिवन नंबर ऑफ कंडक्टर बट वेव फॉर्म इंड्यूस्ड EMF ऑफ मोर साइनसोइडल्स। सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होती है, इफ़ वन ओनली वन कॉइल साइड प्लेस इन द स्लॉट एंड देन वाइंडिंग इज कॉल्ड सिंगल लेयर वाइंडिंग। इफ़ ओनली वन कॉइल साइड इज प्लेस इन द स्लॉट देन वाइंडिंग इज कॉल्ड सिंगल लेयर वाइंडिंग। डबल लेयर क्यों होगी, जब टू कॉइल साइड होगी दोनों स्लॉट पे तो वन ओवर द अदर देन इज कॉल्ड डबल लेयर वाइंडिंग। इसको बोलते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। If two coil side are placed in slot one over the other, then winding is called of double layer winding. फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, इफ़
the two coil side same all coil 180 degree apart, then winding is full pitch winding. In full pitch winding of EMF induced in the each coil in the maximum. शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है? इफ़ द टू coil side are same coil are less than 180 degree winding is called short pitch winding. full pitch क्या होती है? if the two coil side are same coil मोयर देन एंड जो शॉर्ट होती है उसमें जो क्या है लेस देन 180 डिग्री में, तो दैट इज़ कॉल्ड क्या है? शॉर्ट पिच वाइंडिंग. EMF induced in the each coil, the short pitch winding is less than induced in the full pitch winding. Short pitch winding is preferred over full pitch winding. Advantage of the short pitching. First point is copper is saved due to decreased length at the end connections. It reduces the slot reactance, improves the wave shape and the resonate, made more sinusoidal, properly coding the winding. Mechanical strength of coil is improved. It reduces the distorting harmonics wave of generator of EMF. Concentrating winding. If each group of coil under the pole arrange the concentrating shape, when the current flow is traced through the one such connected set of coils, the conductor seam form of spiral around of the portion of the course. Concentrate winding क्या होती है? If each group of coil under of pole arrange of the concentrate shape, यानी कि एक ग्रुप है क्या उस कॉइल में, तो अरेंज किया गया कॉन्सेंट्रेटेड शेप में, तो करंट फ्लो करेगा ट्रेस थ्रू वन सच कनेक्टेड ऑफ सेट ऑफ द कॉइल्स. कंडक्टर सेम फॉर्म ऑफ द स्पिरल अराउंड ऑफ पोर्शन ऑफ द कोर्स. द वाइंडिंग इस कॉल्ड कॉन्सेंट्रेट ऑफ स्पिरल वाइंडिंग, जैसे कि आपको डायग्राम में दिया गया है. T1 में 1 2 3 और पॉइंट है, उसमें क्या है ऊपर से उसकी जो लैप वाइंडिंग बनती है. is prefer to large diameter low speed of synchronous machine. लैप एंड वेव वाइंडिंग क्या होता है? इन द सिंक्रोनिक्स मशीन बूथ वाइंडिंग लैप एंड वेव वाइंडिंग सेम EMF अदर कंडीशन आर सेम. इसमें क्या है? लैप एंड वेव वाइंडिंग में इन द सिंक्रोनिक्स जनरेटर बूथ वाइंडिंग लैप एंड वेव क्या है? दोनों EMF क्या है इसमें सेम प्रोड्यूस होती है. द कॉइल और कॉइल साइड ओवरलैप ईच अदर consecutively and connections are made. Wave winding the coils are always forward connected. Connection lap winding and similar so to that of wave winding, so lap of externally of used. तो ये क्या था हमारा कि आर्मेचर वाइंडिंग कौन कौन सी होती हैं. आर्मेचर वाइंडिंग होती क्या असल में? जिसमें करंट प्रोड्यूस टू मेन फ्लक्स इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग एंड वोल्टेज इंड्यूस टू आर्मेचर वाइंडिंग. तो आगे उसकी क्लासिफिकेशन थी आर्मेचर वाइंडिंग की. सिंगल फेस वाइंडिंग एंड पॉलीफेस वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रेट वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग एंड डबल लेयर वाइंडिंग, एंड फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और कॉन्सेंट्रेट वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रेट वाइंडिंग एंड लैप एंड वेव वाइंडिंग्स. तो ये थे हमारा आर्मेचर वाइंडिंग. आगे क्या है टॉपिक हमारा कि जनरेशन ऑफ सिंगल फेस EMF. जनरेशन ऑफ सिंगल फेस EMF. The machine which generate single phase EMF known as single phase alternator. कि जनरेशन ऑफ सिंगल फेस EMF को हम क्या बोलते हैं? सिंगल फेस ऑफ अल्टरनेटर. द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेस अल्टरनेटर इज सिमिलरली टू दैट थ्री फेस अल्टरनेटर. ओनली डिफरेंस सिंगल फेस अल्टरनेटर द स्टार्टर हैज़ ओनली वन वाइंडिंग इंस्टेड ऑफ थ्री वाइंडिंग. कि सिंगल फेस अल्टरनेटर में स्टार्टर क्या है? ओनली वन वाइंडिंग पे क्या है? स्टड और ऑफ थ्री फेस वाइंडिंग. व्हेन रोटर इज कैरिंग फील्ड वाइंडिंग,
द रोटेट सम मीन्स द स्टार्टर कंडक्टर कट द मैग्नेटिक फील्ड EMF इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है कि जब रोटर कैरी करेगा, स्टार्टिंग करेगा करंट पे, तो रोटेट करेगा और सम सी है जो प्राइम मूवर घूमेगा उसको क्या है रोटेट बाय सम मीन्स। स्टार्टर क्या करेगा, कंडक्टर को कट बाय द मैग्नेटिक फील्ड बाय कट करेगा, तो EMF इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ इंडक्शन। कंसिडर द स्टार्टर कैरिंग सिंगल फेस वाइंडिंग AA, जैसे कि आपको डायग्राम में शो किया गया है। द रोटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग रोटेड बाय प्राइम मूवर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द इंड्यूस्ड EMF इज 0 इन द कॉइल ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट, जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है रोटर क्या है घूम रहा है, ठीक है, उसमें क्या है रोटर हैज़ टर्न थ्रू द 90 डिग्री इंड्यूस्ड। सेकंड फिगर में दिखाया गया आपको 90 डिग्री पे हो जाएगा। इन वन रिवैल्यूएशंस द इंड्यूस्ड EMF कंप्लीट द साइकिल, जैसे कि आपको डायग्राम C में दिखाया गया है। ये है जनरेशन ऑफ सिंगल फेस EMF के जो अब हमारा सिंगल फेस अल्टरनेटर है वो काम कैसे करता है। जब इसमें करंट आएगा तो रोटर स्टार्ट करेगा, रोटर में करंट जाएगा और स्टार्टर क्या है उसको कट ऑफ कर देगा और कंडक्टर को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट क्या है फ्लो शुरू हो जाएगा। तो ये जनरेशन ऑफ सिंगल EMF है आपका। आर्मेचर वाइंडिंग था, उसके बाद आपका टॉपिक था जनरेशन ऑफ सिंगल फेस EMF।